Good evening students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. We all know that there is a chapter of time, speed, distance in our syllabus which covers of plenty of types. Apart from all these types, there is a whole set of questions based on trains. So आज के इस session में, in today's session we are going to learn about a interesting concept of trains questions जिसमें there is a situation that there are two trains starting from their respective stations and moves towards each other. So when they are moving towards each other and have to reach the opposite station, they will definitely in the midway meet each other, they will cross each other. So in this type, the time taken by these trains after crossing each other, I am not talking about the whole time they will take to start from the respective station to reach the opposite one. I am not talking about the whole time, I am just talking about the time taken by them after meeting each other in the midway, anywhere in the midway, after meeting each other, after crossing each other to reach the destination. So this time that they will take after crossing each other to reach the destination, this time is related in a certain manner to the speeds of these trains. So आज के इस सेशन में हम इसी सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि when there are two trains, they start from their respective destinations, have to reach the opposite stations, बीच में रास्ते में कहीं पे भी एक दूसरे को मिलेंगी, क्रॉस करेंगी, क्रॉस करने के बाद जो टाइम वो लेंगे to reach the destination, this time and the speed of these trains, ये आपस में एक तरह से रिलेटेड है. उस रिलेशन को डिस्कस करना है. तो उस रिलेशन को डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने बोल के आपको ये केस समझाया है, इस सिनेरियो को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे और उसी के साथ पूरा एक ये रिलेशन बनाएंगे. रिलेशन पर बेस्ड फिर क्या क्वेश्चंस है जो सी सेट में यूजुअली देखे गए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तो मैं आपको रिलेशन समझाता हूं पहले बच्चे. तो हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो केस है कि लेट्स सपोज देयर आर टू स्टेशंस ए and B. These two stations are some distance apart from each other. Two trains, train A from the A station and train B from the B station starts moving towards each other simultaneously. These two trains start moving from ट्रेन ए फ्रॉम द ए स्टेशन एंड ट्रेन बी फ्रॉम द बी स्टेशन. ये दोनों ट्रेन्स एक ही समय साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही हैं. इनमें से किसी एक ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, दूसरी ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, कोई फास्टर होगी, कोई स्लोअर होगी. तो बीच में कहीं रास्ते में मिलेंगी. तो मान लीजिए रास्ते में किसी भी पॉइंट पर, ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेंगी, मिड पॉइंट पर सिर्फ तभी मिलेंगी अगर द स्पीड्स ऑफ दीज ट्रेन्स इज सेम. अगर ये दोनों ट्रेन्स सेम स्पीड पर मूव कर रही होंगी तो सेम डिस्टेंस कवर करके बिल्कुल मिडवे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर मिलेंगी. लेकिन अगर इनमें से कोई एक ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, किसी दूसरी ट्रेन की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगी. तो मिड पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, कहीं और मिलेंगी. तो किसी भी पॉइंट पर मिलने के टाइम पे क्या होगा, ए ट्रेन यहां होगी, बी ट्रेन यहां होगी. तो मिलने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ए ट्रेन ने कहां जाना है, ए ट्रेन ने बी स्टेशन पर जाना है और बी ट्रेन ने कहां जाना है, बी ट्रेन ने ए स्टेशन पर जाना है. तो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर द टाइम टेकन बाय देम, ट्रेन ए ने टाइम लिया टी ए, ट्रेन बी ने टाइम लिया टी बी. मैं टी कैपिटल्स में लिख दिया, उसे स्मॉल में कर देता हूं क्योंकि कैपिटल्स में हमने ट्रेन्स को नाम दिया है. तो स्मॉल टी ए इज द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन after passing the other train to reach the destination, and TB is the time taken by B train after passing the other train to reach the destination. So TA and TB are the times taken by them after crossing each other to reach their respective destinations, and this time has a relation with their speeds. Let's suppose the speed of train A is SA and speed of train B is, let's suppose, SB. So the ratio of their speeds, SA over SB, the ratio of their speeds is always equal to, ये रिलेशन है जिस पर बेस्ड आपका पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है और सीधा हम आंसर कर पाएंगे. सो द रेशियो ऑफ दीज टू, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ दीज टू ट्रेन्स, स्पीड्स ए ट्रेन की थ्रू आउट सेम रहनी है, बी ट्रेन की थ्रू आउट सेम रहनी है. तो इनकी स्पीड्स की रेशियो किसके बराबर होगी, टाइम टेकन बाय देम उसकी रेशियो उल्टा,
बी का टाइम ऊपर, ए का टाइम नीचे, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बी ट्रेन टू ए ट्रेन। स्पीड्स में ए और बी की रेशियो है, टाइम में बी और ए की रेशियो और उसका अंडर रूट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर to reach their destinations. So the ratio of speeds will be under root of time taken by other train, second train to the time taken by फर्स्ट ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिलेशन आया, उस रिलेशन में हमारे पास चार फैक्टर्स हैं। चार फैक्टर्स कौन कौन से? दो फैक्टर्स है ए ट्रेन की स्पीड और बी ट्रेन की स्पीड, और दो ही फैक्टर्स है ए ट्रेन का टाइम क्रॉस करने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला और बी ट्रेन का टाइम क्रॉस करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला। तो इन चार में से तीन फैक्टर्स आपको गिवन दिए होंगे और चौथा पूछ लिया जाएगा। लेट्स सपोज एग्जामिनर आपको कहेगा कि ए ट्रेन एंड बी ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट स्टेशंस, स्टार्ट फ्रॉम दीज टू स्टेशंस साइमल्टेनियसली, रास्ते में कहीं पे मिलेंगी। सो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मिलने के बाद आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ए ट्रेन टेक्स 16 आवर्स एंड बी ट्रेन टेक्स लेट्स सपोज 20 hours to reach their respective destinations. So if the speed of train A is 30 km per hour, find the speed of train B. एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि A ट्रेन की स्पीड और B ट्रेन की स्पीड क्या होगी। A ट्रेन की स्पीड और B ट्रेन की स्पीड विल बी टाइम टेकन बाय B ट्रेन ओवर टाइम टेकन बाय A ट्रेन, उसका स्क्वायर रूट। तो उसे मैं 20 आवर्स को 25 कर देता हूं, 20 आवर्स की जगह 25। तो टाइम टेकन बाय बी ट्रेन इज 25 डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय ए ट्रेन इज 16, उसका स्क्वायर रूट विल बिकम 5/4। सो 5/4 आपका क्या आ गया? ए की स्पीड और बी की स्पीड। बट क्वेश्चन में ए की स्पीड तो आपको 30 दी हुई है, क्वेश्चन में ए की स्पीड आपको 30 दी हुई है, तो 5 की वैल्यू 30 दैट इज 6 टाइम्स, तो 4 की वैल्यू बी ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? 6 टाइम्स करके आपका आंसर विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक ट्रेन का इंपॉर्टेंट टाइप है, एक ऐसा टाइप जिस पर बेस्ड सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी। So let's come to the question. Examiner is saying there are two trains A and B. They start from stations X and Y towards Y and X, obviously. So if a train is starting from station X, it will go towards to the station Y. And if a train is starting from station Y, it will go towards the station X. So two trains A and B start from X and Y towards Y and X respectively. After passing each other, this is the case. After passing each other, they take A train take 9 hours, while the other train B takes 4 hours. To reach their respective destinations, and if train A is moving at 50 kilometers per hour, find the speed of train B. मैंने अभी आपको जो चीज बताई थी कि हमारे पास चार फैक्टर्स होंगे, जिनमें से तीन फैक्टर्स एग्जामिनर हमें गिवन दे देगा और चौथा पूछ लिया जाएगा। तो आफ्टर पासिंग ईच अदर, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स विल बी SA over SB will be टाइम टेकन बाय B ट्रेन ओवर डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय ए ट्रेन और उसका स्क्वायर रूट। तो एक दूसरे को पास करने क्रॉस करने के बाद बी ट्रेन टेक्स 4 आवर्स डिवाइड बाय ए ट्रेन टेक्स 9 आवर्स, उसका स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 2/3। सो व्हाट इज 2/3? रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ट्रेन ए एंड बी। ए और बी ट्रेन की स्पीड 2:3, जिसमें 2 ए ट्रेन की स्पीड है, हमें 50 गिवन है, 3 बी ट्रेन की स्पीड है, हमने फाइंड करनी है। सो इफ 2 इज इक्वल टू 50, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 25, देन 3 विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड इट विल कम आउट टू बी 75 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसी के साथ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन द whole scenario is the same, the whole format of the question is same, just there are some figures which will make this question somewhat complex, which will make the calculation of this question somewhat complex. The question is, there are two trains A and B, they start from stations X and Y, similarly similar method towards Y and X respectively. So after passing each other, after crossing each other, they take 4 hours and 48 minutes, while the other train, second train, takes 3 hours and 20 minutes to reach the destinations. If train A is moving at 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन B. दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए क्या होगी। तो हमें एक केस क्लियर है कि बोथ ट्रेन्स जो हैं उनकी स्पीड्स की रेशियो विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय B ट्रेन ओवर टाइम टेकन बाय A ट्रेन आफ्टर पासिंग ईच अदर और उसका स्क्वायर रूट। तो B ट्रेन कितना टाइम ले रही है? क्वेश्चन में B और A दोनों ट्रेन का टाइम दिया हुआ है। B ट्रेन टाइम ले रही है
3 hours and 20 minutes. तो 3 hours and 20 minutes will be equal to 3 1 by 3. 3 hours and 20 minutes will be equal to 3 1 by 3 and 3 1 by 3 will become 10 by 3. So जो हमें टाइम कुछ आवर्स एंड कुछ मिनट्स में दिया हुआ था, हमने उसे ओनली आवर्स में कन्वर्ट कर लिया. 3 आवर्स पूरे, जो 20 मिनट्स थे उसे आवर्स में कर लिया 20/60 करके, तो 3 1/3 दैट इज 10/3 बन गया. और बी का टाइम, फर्स्ट ट्रेन का टाइम है 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट आपका क्या बन गया, 4 hours and 48 minutes बिकम्स 4 hours कंप्लीट. 48 मिनट्स जो है उसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, और 12 के टेबल पर कैंसिल होके आ जाएगा 4/5. सो 4/5 विल बी 55 into 4 20 plus 4 24/5 आवर्स. सो जो हमें दोनों का टाइम कुछ आवर्स एंड कुछ मिनट्स में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज कंप्लेक्स थी कि उस टाइम को आपने किस तरह से यूज करना है. तो आपने उसे कन्वर्ट किया सिर्फ आवर्स में यूज करके आपके पास फ्रैक्शंस आ गई. तो बी का टाइम ऊपर रखेंगे, B का टाइम इज 10/3, A का टाइम इज 4 hours 48 minutes, दैट इज द टाइम ऑफ A, दिस वन इज द टाइम ऑफ B. सो B का टाइम ऊपर रखा जाएगा इस क्वेश्चन में 10/3 डिवाइड बाय A का टाइम नीचे, तो डिवाइड बाय 24/5 मींस मल्टीप्लाई बाय 5/24, और इस सारे का स्क्वायर रूट. जब आप बच्चे इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कैलकुलेशन देखिए, 3 किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ 10 और 24 2 से कैंसिल होंगे, यहां 5 आ गया, यहां 12 आ गया. तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, ये आपका बन गया न्यूमरेटर में 5 और 5 25, डिनोमिनेटर में 12 into 3 36. तो इसका स्क्वायर रूट करके आपका आ गया 5/6. तो बच्चे आपकी A ट्रेन की स्पीड और B ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 5 and 6. So speed of train A is 5, which is actually equal to 45 kilometers per hour, and speed of train B in the ratio is 6, which we have to find out. So if 5 units, ratio में 5 units is equal to 45, that is 9 times. So 6 units will be equal to 9 times करके हमारा आंसर will be 54 kilometers per hour. So इस क्वेश्चन का आपका आंसर will be the second option, 54 kilometers per hour. तो ये बच्चे आपका ट्रेन्स का एक थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन बहुत ही डुएबल. और जिस बच्चे को ये रिलेशन याद होगा कि आफ्टर पासिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, द टाइम टेकन बाय देम टू रीच देयर डेस्टिनेशंस और उनकी स्पीड्स में ये रिलेशन बन रहा है, जिन स्टूडेंट्स को ये रिलेशन अच्छे से क्लियर है उनके लिए ये बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चन है. विद इन 15 to 20 सेकंड्स आप बड़े आराम से आंसर कर लोगे. अगर तो आपकी वैल्यूज आ रही हैं इतनी आसान, अगर आपकी वैल्यूज आ रही हैं A ट्रेन विल टेक 9 hours एंड B विल टेक 4 hours, सो टाइम ऑफ B ओवर टाइम ऑफ A करना है तो 4/9 का स्क्वायर रूट दैट इज 2/3. ये स्पीड्स की रेशियो आ गई. अगर तो आपकी वैल्यूज टाइम की इतनी इजी हैं तो आपका क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड्स भी नहीं लेगा. और अगर आपकी वैल्यूज थोड़ी सी कंप्लेक्स है, जिसमें आपने कन्वर्ट करके टाइम्स की फ्रैक्शन टाइम जो ले रही हैं वो फ्रैक्शंस निकालनी है, फिर आपका कुछ 5 से 10 सेकंड्स ज्यादा लेगा. तो मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड्स वाले, ये 25 सेकंड्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे. ये पूरा ट्रेन्स का एक टाइप है. इसी के साथ साथ अगले सेशंस जो हमारे लगते जाएंगे उनमें हम सीसेट के मैथ्स वाले पोर्शन में, जिसकी वेटेज भी काफी बढ़ गई, उसके पोर्शन के काफी टाइप्स को लगातार कवर करते जाएंगे. ट्रेन्स किया है, नंबर सिस्टम के काफी कर लिया, डिविजिबिलिटी रूल कर लिया, परसेंटेज कर लिया, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज कर लिया, ओवरऑल चेंज कर लिया. ये सेशंस हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे. इसी के साथ साथ फुल सिलेबस जो सीसेट का यहां पे बैच स्टार्ट हुआ है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट्स में ज्वाइन कर सकते हो. ऑनलाइन वाले बच्चे मतलब चाहे आपने ऑफलाइन भी ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एकेडमी का नंबर दिया गया है आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं. अगले सेशन में मिलते हैं बच्चे. थैंक यू.